Topic is Mittu and the Yellow Mango from Unit 4, Class 1. This is a story. Let's start the story. Mittu was a parrot, a green parrot with a red beak. So this story is about a parrot whose name was Mittu. So he was green in color and with a red beak. His beak is red in color. This is called beak. One day Mittu was flying. He loved to fly. So Mittu loved to fly and he was flying one day. He looked down. He saw a big yellow mango on a tree. So one day while flying, he saw one yellow mango on the tree. Mittu liked mangoes. I want to eat that yellow mango, he said. So he said to himself that I want to eat that yellow mango. Why he was saying this? Because he liked mangoes. See? He flew down to the tree. So he wanted to eat it. That's why he flew down to the tree. Cow, cow, go away. This is my tree, said a voice. Mittu looked up. He saw a big black crow. So to hear the voice, Mittu looked up. He saw a big black crow was saying that this is my tree. You go away from here. Cow, cow, go, go, the crow shouted. He had a very loud voice. Mittu was afraid of the crow. He flew away. So a crow was living on that tree. See, a crow is living here and he was shouting on the parrot. So he shouted on Mittu to go away. Mittu got frightened and went away. Mittu saw a red balloon. It was under a tree. He had an idea. While flying, Mittu saw a red balloon under the tree. So to see the balloon, he got an idea in his mind. He picked up the red balloon. He was careful not to burst it. He flew to the mango tree. The crow was sitting on the tree. Mittu went behind the tree. So he came back with an idea. He brought a red balloon in his beak. Okay, and what he did, he pecked the balloon with his red beak. Pop, the balloon burst. It made a loud noise. So he burst the balloon behind the tree and it made a very loud noise. Cow, said the crow. And to hurt the noise, the crow said cow and he fell off the tree. Cow, cow, a big gun is after me, said the crow. To hurt the noise, the crow said, a gun is following me. He flew away. He never came back to the tree. So he flew away with a great fear and he never came back to the tree. Mittu came to the tree. He ate the big yellow mango. Yummy, yummy. See the picture? Mittu is eating the mango. What a nice mango, he said. He was very happy. Clever Mittu. So at last Mittu ate the yellow mango happily and he was very clever. He used his mind. So now we will do some new words. First word is black. It's a name of a color. Second is crow. See the picture. This is crow. Mango. It's a fruit. Mango. And parrot is a bird. So now I will translate this story in Hindi also. मिट्ठू एंड द येलो मैंगो. मिट्ठू और एक येलो मैंगो, पीला आम. ये कहानी है. ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं. मिट्ठू वॉज अ पैरेट. मिट्ठू एक पैरेट था, एक तोता था. पैरेट यानी तोता. अ ग्रीन पैरेट, एक ग्रीन पैरेट विद अ रेड बीक, जिसकी लाल रंग की चोंच थी. बीक यानी कि चोंच. वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग. एक दिन मिट्ठू उड़ रहा था. ही लव्ड टू फ्लाई. उसे उड़ना बहुत पसंद था. ही लुक्ड डाउन. उसने नीचे देखा. ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री. उसने देखा एक पेड़ पर, आम के पेड़ पर एक पीला, बड़ा सा पीले रंग का मैंगो यानी आम जो था वो पका हुआ था. मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज. मिट्ठू को आम बहुत पसंद थे. आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो. मैं इस येलो मैंगो को खाना चाहता हूँ. ही सेड. उसने कहा.
ही फ्लू डाउन टू द ट्री, वो उड़ते हुए नीचे गया पेड़ के पास। काव काव गो अवे, काव काव यहाँ से जाओ। दिस इज माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। सेड अ वॉइस, एक आवाज ने कहा। मिट्ठू लुक्ड अप, अब आवाज सुनकर मिट्ठू ने ऊपर देखा। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, उसने देखा कि एक बड़ा काला कौवा पेड़ पर बैठा है। काव काव गो गो, काव काव जाओ जाओ। द क्रो शाउटेड, क्रो कौवा चिल्लाया। शाउटेड पास्ट टेंस है शाउट का। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, उसकी आवाज बहुत ही लाउड थी, बहुत ही ऊंची थी। मिट्ठू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, अफ्रेड यानी कि डर गया। मिट्ठू जो है वो क्रो से डर गया। ही फ्ल्यू अवे, फ्लाई का पास्ट टेंस है फ्ल्यू, ही फ्ल्यू अवे, वो वहां से उड़ गया। मिट्ठू सॉ अ रेड बैलून, मिट्ठू ने एक रेड बैलून देखा। ये देखिए मिट्ठू की नज़र इस बैलून पर पड़ी। इट वॉज अंडर अ ट्री, ये एक पेड़ के नीचे था। ये बैलून पेड़ के नीचे रखा हुआ है। ही हैड एन आइडिया, बैलून को देखकर उसे एक आइडिया आया। ही पिक्ड अप द रेड बैलून, उसने रेड बैलून को उठाया। ही वॉज केयरफुल, केयरफुल यानी कि ध्यान रखना, उसने ध्यान रखा। नोट टू बर्स्ट इट, बर्स्ट यानी फटना, कि वो बैलून फूटे नहीं। ही फ्ल्यू टू द मैंगो ट्री, वो उड़ते हुए मैंगो ट्री के पास आया। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो जो है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री, अब मिट्ठू पेड़ के पीछे आया। ये देखिए क्रो का फेस उधर है और ये पेड़ के पीछे है। ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक, पैक्ड यानी कि चोंच मारना, रेड बीक अपनी लाल चोंच से, उसने अपनी लाल चोंच से उस बैलून पर जोर से चोंच मारी, उसको चुभाया, अपनी बीक से बैलून पर चोंच मारी। पॉप, और बैलून पर जैसे ही उसने अपनी चोंच को मारा तो पॉप द बैलून बर्स्ट, बैलून के फटने से एक साउंड हुआ पॉप, बहुत तेज। इट मेड अ लाउड नॉइस, इसने बहुत तेज आवाज की, यानी बैलून के फटने पर बहुत ही तेज आवाज हुई। काउ सेड द क्रो, क्रो ने कहा काउ। एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वो पेड़ से गिर गया। काव काव अ बिग गन इज आफ्टर मी, और वो चिल्लाया काव काव, एक बहुत बड़ी गन मेरे पीछे है। सेड द क्रो, क्रो ने कहा। ही फ्ल्यू अवे, वो उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, और वो दोबारा कभी उस पेड़ के पास नहीं आया। मिट्ठू केम टू द ट्री, अब क्रो के जाते ही मिट्ठू पेड़ के पास आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, और उसने उस बड़े से येलो मैंगो को खाया। यमी यमी, व्हाट अ नाइस मैंगो, ये मैंगो कितना टेस्टी है। ही सेड, उसने कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था उस मैंगो को खाकर। क्लेवर मिट्ठू, चालाक मिट्ठू, मिट्ठू जो है वो बहुत ही चालाक था। अब हम करते हैं इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है अपना ब्लैक, ब्लैक जो है कलर का नाम है। काला, ब्लैक का मतलब होता है क्रो यानी कि कौवा, ये एक बर्ड है। मैंगो, ये फ्रूट है, मैंगो आम, ठीक है। और ये है पैरेट, पैरेट यानी कि तोता, ये भी एक बर्ड है, ठीक है। न्यू वर्ड्स के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री। I am repeating the question. What did Mittu see on the tree? Answer. Mittu saw a big yellow mango on the tree. Question number 2. What did the big black crow say? Answer. He said Mittu to go away. Question number 3. What did Mittu see under the tree? Answer. Mittu saw a red balloon under the tree. Question answers are finished. Next topic is opposite words. First word is day. Opposite of day is night. Big, small. Love, hate. Up, down. Black, white. Loud, quiet. After, before. Under, above. Like, dislike. Come, go. So you have to write these opposite words in your notebook. Next is let's share. Question. Color the chili red and the parrot in colors of your choice. तो ये जो चिली है,
पैरेट की बीक में इसको आपको रेड कलर करना है और पैरेट को आप किसी भी कलर से कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। कलर करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। आप इसे ब्यूटीफुली केयरफुली अच्छे से कलर कीजिए। नेक्स्ट इज ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। सो हमें ये लेडी बर्ड का पाथ यानी कि रास्ता है, इसे पेंसिल से ट्रेस कर देना है। पेंसिल लीजिए अपने हाथ में और इसे अच्छे से ट्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन इज फिनिश। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। सो हमें इन फ्रूट्स को इनके ट्री के साथ मैच करना है, जिस ट्री पर जो भी फ्रूट ग्रो करता है। सो सबसे पहले है बनाना। सो बनाना विल ग्रो ऑन बनाना ट्री, वी विल मैच इट। कोकोनट विद कोकोनट ट्री। एप्पल विल ग्रो ऑन एप्पल ट्री। ग्रेप्स grape vine, and mango tree. So match it in your textbook. Next question, draw over the dotted lines. So हमें क्या करना है, इन dotted lines को draw करना है. So take a pencil in your hand and draw it. This is a very simple question. You can do this very easily. So now we will trace the another one. Yes, these questions are very interesting, है ना? And I hope you like to do to trace the dotted lines. Now this is almost finished. This is done. Let's come to the next question. Say aloud. Say aloud. So we can call it rhyming words and you can write in your notebook. है ना? These are rhyming words. First is bat, cat, mat. Second, bad, fad, red. Third, bit, hit, pit. Four, dot, hot, pot. And 5, bun, fun, sun. है ना? So you can write it in your notebook. Next question, choose a letter from the box and complete the words below. So box में जो letter आप पहले उन्हें ध्यान से देखिए. A, E, I, O, U. These are vowels. Remember we have done it in our previous video. है ना? So vowels को हमें यहाँ पर fill करना है. So first is S dot T. So S A T sat. P I G pig. B A G bag. D O T dot. S U N sun. F U N fun. L E G leg. S I T sit. L E T let. And B U N bun. है ना? सो आप इसे फिल कर लीजिए और ये क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक में ही कर सकते हैं, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश होता है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और लेसन की रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना. ओके, थैंक यू.